Today we'll start with the chapter Arithmetic Progression. This is chapter number 5 of class 10th NCERT textbook. In this chapter, in the beginning, we will look upon certain sequences and series, and then we will find out what actually is an arithmetic progression. We will define an arithmetic progression, and then we will also define the various terms that are used in the arithmetic progression. You will have terms like first term, the common difference, and then the last term. Later, we will find out how to calculate the nth term of an arithmetic progression. And then we will also learn to find out the sum of given number of terms of any arithmetic progression. There will be some word problems related to this formula too. So let us begin with the chapter. Into nature, you will find various beautiful patterns. If you have seen movies that are shot in the desert, you might have seen the pattern of sand, how beautiful it looks. Sometimes when you look at the night sky with the stars or the star-filled night sky, you can see different patterns. Now I will show you some patterns. We'll look at some patterns and see how the nature has arranged the things that they appear to be in a beautiful sequence. Can you see this beautiful peacock? Can you see the pattern of the feathers? Look how beautifully it has been arranged without any overlapping, and it gives this peacock a magnificent structure. देखते ही मन खुश हो जाता है. Just imagine nature ने कितना मेहनत किया होगा for designing a peacock. See the sequence of its feathers, the eyes of the feathers, how well it has been arranged. उसमें भी वो colors देखो, उसका pattern देखो. It is also in a particular sequence. This beautiful animal, even without the head or the tail, you can say which animal this is, because the stripes of this animal is so unique that right from your early childhood days, when you say black and white stripes, it is nothing but the zebra. So you can see how well these stripes have been arranged and see the sequence. See how nature has done it beautifully. Can you guess what this can be? I am guessing it. These are the veins or the reticular venation of a leaf. See the veins of the leaf. कितने सुंदर तरीके से उसको अरेंज किया गया है. ये कंप्लीट पिक्चर नहीं है, इसका स्पाइरल तो और सुंदर है. स्पाइरल शुरू हुआ है. आप लोगों ने क्लास 9th में रैशनल नंबर का स्पाइरल देखा है. इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट. Okay, so these are the veins of the leaf. Nature has taken so much of care and so much of trouble to design this. See the beautiful sequence. दिल खुश हो जाएगा. Sunflower. Just look at the sunflower petals and the seeds of the sunflower, the inner part. Can you see the design, how they have been arranged? This exactly, they say, coincides with something called as the Fibonacci series, which I'll be showing you. One of the Fibonacci series we'll be doing now. So see how well these seeds have been arranged. Just see the beauty of the nature. Another beautiful example where nature has done its best, which shows its magnificence, is the honeycomb. See the hexagonal structure. Hexagon है. See देखो कितना exactly hexagon बना है और उनके बीच का space देखो. कितना सुंदर तरीके से ये sequence को उन्होंने arrange किया है. Photography भी बहुत अच्छा हुआ है. So this is a honeycomb, another wonder of the nature. बताओ ये क्या है? बताने की जरूरत नहीं, आप लोग guess कर लेंगे इसके pattern से ही, इसका sequence से ही आप बता लेंगे ये क्या है. These are the wings of the butterfly. See how beautifully it has been designed. जैसे किसी पेंटर ने पेंट किया. हर बटरफ्लाई को गॉड बना के पेंट बुलाता होगा, चलो आज अब तुम्हारा बारी है, तुम आ जाओ, तुमको हम पेंट करते हैं. हर बटरफ्लाई का विंग जो है अलग दिखता है. कितना सुंदर है. तुम सोच सकते हो ये कैसे होता होगा? कभी सोचा है? कितना वंडरफुल है ये नेचर. कौन करता होगा ये पेंटिंग और ये सब? Another magnificence of the nature is this. ये क्या है? किसका स्किन है? Yes, right? Leopard या चीता का स्किन है. See the designs. Patterns देखो, कभी 3 flowers है, 3 petals है, कभी 4 petals के flowers जैसे. ये चीता का स्किन. Beautiful है.
नेचर का ब्यूटी है ये अगेन बहुत सुंदर सीक्वेंस. Now let us take another example. There's a girl, her name is Reena, and she got selected for a job. She went for the job, she started her job, she was very happy. She started earning a good amount. It was around 18,000 rupees that she started earning. And after the first year, she found that she got an increment of 500 rupees. So in the second year, after the first year, she started getting 18,500. That means in the second year. In the third year, again they gave her a rise because she was doing very well of 500 rupees. And this sequence went on. So this particular sequence 18,000, 18,500, 19,000, 19,500 is a sequence that you can try to understand. Look at this ladder. If you see this ladder is longer at the bottom, and as you go up the ladder, the steps become narrower. So here they have given they tried to measure the length of these rungs or the steps, and they have written here. So the steps are, the first step is 45 centimeter long. Then it is 43, 41, 39, 37, 35, and the last step, that is the eighth rung, is 31 centimeter. If you see, this again follows a pattern. If you see that it goes on reducing by 2. So this is following a pattern, and so this forms a sequence. Another example of a sequence is this particular question or a statement, that is, in a savings scheme, the amount becomes 2 times the number or the amount you have deposited in every 3 years. Suppose you deposit 2,000 initially. So after 3 years, it becomes double, 4,000. And after 6 years, it becomes double of 4,000. So it becomes 8,000. And after 9 years, it becomes double of 8,000, it becomes 16,000. And after next 3 years, that is after 12 years, it becomes double of 16,000, that is 32,000. This again here, if you see this 4,000, 8,000, 16,000 and 32,000, it again follows a particular sequence because every succeeding number is a double of the preceding number. So here again you can find a sequence. Example of another particular sequence. Here you have one square. Here the square has been divided into 4 parts. Here it has been divided into 9 parts. So in this particular fashion, if you go on dividing a square, so the number of squares in each of these particular squares or rectangles will be, first case 1, when I divide it into 4 parts, so it is 4, then 9, and goes on. So this forms another sequence. This is the story of Shakila, who saves for her daughter's education. So what she does, she starts saving money. How does she save? On her first birthday, she had money, so she saved 100 rupees. She put it into her box, okay, on the piggy bank. Next year, she thought that child has grown one more year, so let me put some more money. So next year, she added a 50 rupees more, and she put 150 in the piggy bank. In the next third year, again, as the daughter was growing, she thought she should put some more money. She put 50 rupees more and she put 200 rupees into it. And then the fourth year, she put 250 rupees, and subsequently she kept on increasing the amount that she was depositing for her daughter in the piggy bank by 50 rupees. If you see, this particular 100, 150, 200, 250 again forms a sequence. Okay. This is the story of a pair of rabbits. Suppose you got a pair of rabbits as gift. Okay. So this is the two rabbits. In the first year, they are very young, so they don't produce any other rabbits. So in the beginning of second year, there are only two rabbits. When the second year ends,
they are adults now, so they produce another pair of rabbits. Okay, वो और दो बच्चे यानी एक पैर पैदा करते हैं. So in the beginning of third year, how many rabbits will be there? These two rabbits plus another two rabbits. अब third year जब खत्म होता है, they are very young. एक साल they don't give birth to any babies. So these two are as such. वो दोनों ऐसे ही रहेंगे. लेकिन they are old enough. ये दोनों तो old enough है. फिर से they will give birth to another pair of babies. So how in the end of the third year, yani in the beginning of fourth year, how many rabbits are there? These two are there. इन्होंने जो बर्थ दिया ये दो है और जो पहले बर्थ दिया वो दोनों. In the fifth year, ये दोनों बड़े हो गए. So they can give birth to babies. So they will give birth to babies. और ये दोनों खुद भी रहेंगे. ये दोनों तो अभी यंग है, एक साल नहीं हुआ, तो they will be as such. And ये फिर से एक और पेयर को बर्थ देगा. So a new pair and they themselves. So how many rabbits? Pair of rabbits. 1, 2, 3, 4 and 5. Similarly, in the next year, that is the sixth year, ये तो दो देंगे, ये तो नए हैं, 1 year ही हुआ है, so they are as such. इनका एक साल हो गया, so they will give birth to 2. इनका भी एक साल हो गया, they will give birth to 2. ये अभी नए हुए थे, so they won't give birth to anyone. So if you add all these, it will be 8. So you get a sequence for every year. First year, second year, third year में 2, fourth year में 3, fifth year में 5 and sixth year में 8. पहले देखने से इसमें कोई सीक्वेंस समझ में नहीं आएगा, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा सीक्वेंस कैसा है. 1 से पहले कोई नंबर नहीं है, 0 है, तो सेकेंड टर्म 0 + 1 1 है. थर्ड टर्म में ये दोनों ऐड हो जाएगा, 1 + 1 2. उसके बाद वाले टर्म में ये दोनों ऐड हो जाएगा, 2 + 1 3. उसके बाद वाले टर्म में 2 + 3 ऐड हो जाएगा 5. उसके बाद वाले टर्म में 3 + 5 ऐड हो जाएगा 8. Such a sequence or a series is called as a Fibonacci series. एक जापानीज मैथमेटिशियन के ऊपर है. Okay, we have studied about or we looked into various kinds of series या sequence, अलग अलग पैटर्न में नंबर्स को देखें. अब हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? What are we going to study in this chapter? We will be studying a particular series in which you will have a first term and all the other terms you will get by adding a fixed number. एक टर्म रहेगा, उसके बाद जितने टर्म्स आएंगे एक फिक्स नंबर ऐड होते 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 आएगा. फॉर एग्जांपल, एक नंबर आपके पास 5 है, अब बोलेंगे फिक्स नंबर को लेके आओ, टंग 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 लेके आते. फिक्स नंबर कौन सा है? 3. अब आपके जितने भी टर्म्स बनेंगे इस सीरीज में वो 3 ऐड करके बनेंगे. जैसे 5 है, 5 में 3 ऐड हो जाएगा तो अगला नंबर हो जाएगा 8. फिर 8 में फिर से 3 हो जाएगा तो अगला नंबर हो जाएगा 11. 11 में फिर से 3 ऐड हो जाएगा तो अगला नंबर हो जाएगा 14. तो आपको एक पैटर्न मिलेगा 5, 8, 11, 14. इस पर्टिकुलर पैटर्न को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. हम लोग यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसको एपी शॉर्ट में बोलते हैं, जीपी, एपी बोलते हैं. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. ये देखो 1, 2, 3, 4. बोलेंगे अरे भाई इसमें कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? क्यों नहीं है, इसमें भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. बताओ आप, इसमें हर नंबर पे 1 ऐड करते हुए जा रहे हैं, तो यानी फिक्स नंबर जो ऐड हो रहा है वो है 1. अगला देखो 100, 70, 40, 10. बोले यार दत्त तरीके ये तो कम हो रहा है, ये क्या है? बोले ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इसमें जो ऐड हो रहा है वो है -30. -30 ऐड हो रहा है. 100 + -30 70 हो जाएगा. 70 में फिर +-30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा. उसमें फिर +-30 हो जाएगा. 10 10 में फिर +-30 हो जाएगा तो -20. इस तरीके से बढ़ता जाएगा. तो ये भी एपी है और ये भी एक एपी है. देखो -3, -2, -1. इसमें आपका +1 ऐड होता जा रहा है. अगला देखो सबसे मजेदार 3, 3, 3, 3. बोले इसमें कहाँ से एपी? क्यों नहीं है? इसमें भी एक नंबर ऐड हो रहा है, वो है 0. सब में एक में हर एक में 0 ऐड होता जा रहा है, तो आपका एपी. अब नंबर नहीं बदला लेकिन नंबर तो ऐड हो रहा है यहाँ पे, तो ये भी एपी है. अनदर एपी उन्होंने डेसिमल में दिया है. यहाँ पे -0.5 ऐड होता जा रहा है. यहाँ -10 था, -1.0 था, उसमें फिर से -0.5 ऐड हो गया, -1.5 आया, फिर से उसमें -0.5 ऐड हुआ, -2 आया. So ये सब एग्जाम्पल है arithmetic progression. What did you see in the earlier slide or earlier portion?
you had seen a sequence of numbers and you saw that in that particular sequence, each number in that sequence, each successive number was obtained by adding a fixed number to the preceding number. पहले नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड करने से अगला नंबर मिलेगा, उसको हम टर्म कहते हैं. उस टर्म में फिर से वो नंबर ऐड करने से, सेम फिक्स नंबर ऐड करने से आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगा. इस तरीके का जो सीरीज बनता है उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. यानी किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म रहता है, उसमें एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं तो आपको सेकंड नंबर मिलता है. उसी नंबर को फिर से ऐड करेंगे, वही फिक्स नंबर को ऐड करेंगे, आपको थर्ड टर्म मिलेगा एंड सो ऑन. ऐसे सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं. So once again, what is an arithmetic progression? An arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term, except the first term. First term given रहता है, वो रहता है. उसके बाद whatever term you get by adding a fixed number to the preceding term. Okay, so that is a arithmetic progression. An arithmetic progression is a list of numbers or a series of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number, which you call it as a common difference. Okay, adding a fixed number to the preceding term. Just as I said earlier, the first term which you write, the first term is denoted by small a. Whenever we do problems, the first term is denoted by small a, and the fixed number that you will be keeping on adding, that is called as a common difference, and you will denote it by the letter small d. The small d can be a positive number, plus 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 बढ़ता भी जा सकता है. It can be a negative number also. माइनस 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 करके कम होता भी सीरीज जा सकता है, सीधा भी जा सकता है, उल्टा भी जा सकता है. जैसे 2 4 6 8 भी हो सकता है, 10 8 6 4 2 0 -2 भी हो सकता है, या फिर आपका ये कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है. हमने भाई कुछ ऐड ही नहीं किया तो आपका सीक्वेंस क्या होगा, 3 है मान लो फर्स्ट टर्म, उसमें 0 ऐड किया, फिर से 3 है, फिर 0 ऐड किया, फिर से 3 है, तो 3 3 3 3 3 भी आपका एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. उसमें आपका जो फिक्स टर्म जो आप ऐड कर रहे हो जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं वो 0. चलो हम एक एपी लिखना शुरू करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. उसका हर टर्म को हम बुलाते हैं a1, पहला वाला आ जाओ, a2 a3 a4 a5 एंड सो. इसका जो पहला टर्म है वो a1 है. अब इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, कौन सा नंबर हमने ऐड किया, वो कैसे पता चलेगा? वो हमको पता चलेगा अगर मैंने a2 में से सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, क्योंकि हमको ऐड करके ये वाला टर्म मिला है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, दो सक्सेसिव टर्म्स को माइनस करेंगे, तो आपको जो डिफरेंस मिलेगा उसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं. एंड एपी का ब्यूटी क्या है? एपी का ब्यूटी ये है कि हर दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है, यानी सक्सीडिंग टर्म और प्रीसीडिंग टर्म के बीच में जो डिफरेंस है, कोई भी दो टर्म्स अगर आप लेते हैं वो हमेशा सेम रहेगा. ऐसे सीरीज को ही हम एपी कहते हैं. जो भी, जैसे आपने a2 माइनस a1 किया, जो आंसर आया वही आपका a3 माइनस a2 में होना चाहिए, वही आपका a4 माइनस a3 में होना चाहिए, वही आपका a5 माइनस a4 में होना चाहिए. इसी को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं. Now let us see how can we get an AP. AP कैसे मिलता है? अगर आपको पहला टर्म मालूम है a और कॉमन डिफरेंस मालूम है d, तो आप आराम से एक AP लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम पहला टर्म को ले लेते हैं 2 और कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं 3. ठीक है, तो आपका पहला टर्म तो 2 हुआ. इसके बाद सेकेंड टर्म कैसे मिलेगा? a प्लस डी, यानी 2 प्लस 3, अगला टर्म हो जाएगा 5. थर्ड टर्म कैसे मिलेगा? जो आपको मिला a प्लस डी, उसमें एक और डी ऐड हो जाएगा, यानी 5 प्लस 3 8. फोर्थ टर्म कैसे मिलेगा? जो आपको थर्ड टर्म मिला उसमें एक और क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग, 3 ऐड कर रहे हैं, एक और 3 ऐड करेंगे तो आपको एक और 3 उस क्वेश्चन में करेंगे और यहाँ पे एक और डी ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा a प्लस 3. ऐसे फिफ्थ टर्म में a प्लस 4d. अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ फिफ्थ है तो यहाँ 4d हो जाएगा, यहाँ फोर्थ है तो यहाँ 3d. तो इससे हमको पता चल जाएगा अगर हमें nth टर्म निकालना है, कोई भी टर्म अगर निकालना है nth टर्म, तो वो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इससे एक कम से मल्टीप्लाई करना है, ये है फॉर्मूला. a प्लस फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी. डी कितने बार ऐड करना है आपको?
जितना टर्म्स पूछा उससे कम एक कम n-1 into d. an is the nth term, n is the number of terms and d is the common difference. इस क्वेश्चंस में यहाँ पे जो मैंने दिया है इनमें कुछ क्वेश्चंस है, इसमें सब आपको बताना है कि या एग्जाम्पल्स है ये एपी का, ठीक है। तो आप इसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मॉर्निंग असेंबली में बच्चे खड़े हैं, उनका हाइट वाइज खड़े रहते हैं, तो एक का 147, फिर 148, 149 इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, तो ये एपी है। वैसे ही जनवरी में एक सिटी में टेम्परेचर्स मेजर किया और उसको अरेंज किया उन्होंने। शुरू में -3.1, फिर -3.0, -2.9, -2.8, -2.7। ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? जल्दी बताओ। बढ़ रहा है ना। नेगेटिव में आपका जो स्मॉलर टर्म्स होते हैं वो ग्रेटर होता है, तो यहाँ +1 डिग्री के हिसाब से ये बढ़ता जा रहा है। वैसे एपी और देखना कहाँ कहाँ मिलेगा, ये सब एग्जाम्पल्स है जहाँ आपको एपी देखने मिलता है। जैसे आपने किसी से 1000 रुपीज लिया, हर महीने आप उसको 50 रुपीज वापस कर रहे हैं 5% के हिसाब से, ठीक है। सो हर महीने 50 रुपीज वापस करेंगे तो उसको कितना लोन बचेगा? तो फर्स्ट मंथ दे दिया तो 950 बचेगा, फिर 900 बचेगा, फिर 850 बचेगा, फिर 800 बचेगा, एंड दिस वे गोज ऑन। लास्ट में 50 रुपीज तक उसका, फिर उसके बाद वो भी दे देगा तो खत्म हो जाएगा। तो ये जो बन रहा है ये भी एक एपी। वैसे ही कैश प्राइसेस दिया जा रहा है, ये बहुत अच्छा है। इसमें भी उन लोगों ने कैश प्राइसेस दे रहे हैं 200, 250, 300, 350, 750। ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, उल्टा है। ये फर्स्ट रैंक वाले को होगा, फिर 700 सेकंड रैंक, इस तरीके से वो पैसा दे रहे हैं, ठीक है। वैसे एक और सेविंग्स का एक एग्जांपल है, ये जो दिया है, मंथ में सेविंग कर रहा है, हर महीने पहले महीने में उसने पैसा बचाया 50, फिर अगले महीने में थोड़ा और पैसा बचाया 150, इस तरीके से वो सेव कर रहा है। तो ये भी एक एग्जांपल है एपी। If you look at this particular slide, यहाँ पे आपका पहला टर्म 6 है, उसके बाद कॉमन डिफरेंस 3 है, तो उन्होंने बोला है आप एक एपी बनाओ। तो फर्स्ट टर्म अगर आपका 6 है तो अगला टर्म हो जाएगा a प्लस डी, यानी 6 + 3 9। उसके बाद उसमें एक और 3 ऐड हो जाएगा 12, उसमें एक और 3 ऐड हो जाएगा 50, एंड सो ऑन इट विल गो। तो ये 6, 9, 12, 15 जो है एक एपी बनेगा जिसका फर्स्ट टर्म 6 है एंड कॉमन डिफरेंस 3। एग्जाम्पल है, इस क्वेश्चन में भी आपका फर्स्ट टर्म जो है वो 6 है, लेकिन कॉमन डिफरेंस -3, तो आपका एपी का बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। पहला डिजिट आपका 6 है, दूसरा आपका उसमें से 3 माइनस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 3 माइनस होगा, 0 होगा, फिर से 3 माइनस होगा, -3 होगा, फिर से 3 -3 माइनस होगा, फिर से 3 माइनस होगा, तो आपका -3 के बाद -6, -9, इस तरीके से आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी चलता जाएगा। ये बहुत मजेदार है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको बस बताना है कि इस 4, 10, 16, 22 के बाद पहले देखना वो एपी है कि नहीं। एपी है कि नहीं पहले कैसे पता करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एपी है कि नहीं पहले पता करने के लिए आप इन दोनों को माइनस करना, 10 - 4 करना, फिर a3 - a2 करना, a2 - a1 करना, फिर a3 - a2 करना। अगर सेम आएगा तो ये एक एपी हो जाएगा, ओके। उसके बाद आपको इनके दो अलग अलग टर्म्स लिखने हैं, वो आप खुद ही लिख सकते हैं। दिस इज वर्क फॉर यू, क्वेश्चन फॉर यू। आपको अगेन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दिया है, आपको फर्स्ट 4 एपी के टर्म्स लिखने हैं। जैसे फर्स्ट टर्म 10 दिया है, कॉमन डिफरेंस 10 दिया है, तो ये जो एपी बनेगा उसका टर्म्स क्या होगा? तो पहला टर्म 10 है, फिर आपको अगला टर्म कैसे मिलेगा? 10 प्लस ये कॉमन डिफरेंस 10, 20, फिर 20 प्लस कॉमन डिफरेंस, फिर 30 आएगा, 30 प्लस कॉमन डिफरेंस 40। इस तरीके से आपको ऐड करते, फर्स्ट टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, फिर सेकेंड टर्म के साथ करेंगे थर्ड टर्म के लिए, फिर थर्ड टर्म के साथ करेंगे फोर्थ टर्म के लिए। इस तरीके से आप लिखेंगे। तो दिस इज ऑल्सो अ वर्क फॉर यू टुडे, ओके। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, क्या है ये आपको पता चला। अब हम लोग इसके बाद इसका nth टर्म कैसे निकालेंगे। इसका अगर हमें nth टर्म निकालना है, यानी अगर आपको बोलेंगे कि एपी दे दिया 100 टर्म बताओ भाई इसका क्या है 100 टर्म, तो एक बार आप ऐसे ऐसे करके काउंट करके नहीं बता पाएंगे, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला से हम उसको करेंगे, ठीक है।
Just see how we are finding out the nth term of an AP. कोई भी एक टर्म अगर बोलेंगे, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तो आप ऐड करके निकाल लेंगे. अब कोई बहुत बड़ा टर्म निकालने बोलेंगे, जैसे आपका एक AP है 3, 7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन, उसका आपको 15th टर्म निकालना है, तो कैसे करेंगे? तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल टू nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यहाँ पे a आपका 3 है, d यानी कॉमन डिफरेंस कैसे मिलेगा? सक्सीडिंग टर्म्स, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, प्रीसीडिंग टर्म. ठीक है, आपको आंसर आया 4. आप इसमें कोई भी दो टर्म्स को कर सकते हैं, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, तो आपका आंसर 4 है. और आपको बोला है 15th टर्म निकालना, तो n आपका 15 रखेंगे. सो ए एन यानी a 15th टर्म, a 15th टर्म आपको निकालना है. 3 प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 4. सो 3 प्लस 14 इंटू 4. पहले बॉड मैथ रूल कहता है पहले ऐड नहीं करेंगे, पहले हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. 14 इंटू 4 56, 56 प्लस 3 59. तो 15th टर्म आपका यहाँ पे 59 है. आपको एक और क्वेश्चन दिया है 2, 7, 12 एक एपी है, उसका आपको 10th टर्म निकालना है. तो आपका फर्स्ट टर्म यानी a आपका 2 है, कॉमन डिफरेंस सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे या थर्ड माइनस सेकेंड करेंगे, आपका 5 है. एंड नंबर ऑफ टर्म्स यानी कौन सा टर्म निकालना है, वो 10th टर्म आपको फाइंड करना है, यानी n का वैल्यू आप 10 करेंगे. वो सब यहाँ पुट करेंगे, a की जगह 2 पुट करेंगे, n की जगह 10 पुट करेंगे, d की जगह 5 पुट करेंगे. अब उसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो 10th टर्म है 47. कितना, देखो कितना इजीली आपको आ जाता है, कितना आराम से आप निकाल सकते हैं. अब मैंने ऐसे 4 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, उसको आपको सॉल्व करना है. ठीक है.